फ्रेंड्स, नमस्कार। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट सेकंड में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फर्स्ट है प्रिपरेशन, और 7 चैप्टर का जो आज का टॉपिक रहेगा वह है वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। व्हाट द उपनिषद टीचेस। A seer of the Upanishad, after having followed the spiritual path and after having realized the Supreme Spirit, spoke in these terms. The wise ones say that the path to the realization of the Supreme Spirit is as difficult to tread as the sharp edge of a razor. However, through proper training, even the most difficult path may be followed and the supreme goal attained. This is what the ancient Hindu philosophical and spiritual teachers discovered. What kind of training are we expected to undergo before we embark on the difficult but most important journey into the realm of the spirit? The quote the Upanishad again. Know the Atma to be the master of the chariot and the body as the chariot. Consider the intellect, buddhi, as the charioteers and the mind as the rein. The senses, they say, are the horses and the roads are the sense object. The wise call him the Atma, the enjoyer, when he is united with the body, the senses, and the mind. And here the teacher exhorts the disciple. Having approached the enlightened teacher, arise, awake, and realize the self, realize the Atma. One becomes freed from the jaws of death only by realizing the highest reality, which is soundless, colorless, tasteless, orderless, immutable, beginningless, everlasting, and which transcend even the cosmic mind. As we read these passages, we comprehend why our spiritual teachers place before us the highest ideal and also speak to us about the necessity of acquiring proper qualification without which no spiritual realization is possible. Without even the spiritual path may prove to be dangerous, but with the required training, one can reach the goal ultimately. तो आज 7वें अध्याय में जो आज का टॉपिक है तलवार की राह पर चलना। उपनिषद क्या सिखाता है? उपनिषदों के एक दृष्टा ने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और परम आत्मा को प्राप्त करने के बाद इन शब्दों में कहा। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि परम आत्मा की प्राप्ति का मार्ग उस की धार की तरह कठिन है। हालांकि उचित प्रशिक्षण के माध्यम से सबसे कठिन मार्ग का भी अनुसरण किया जा सकता है और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन हिंदू दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षकों ने यही खोजा था। आत्मा के क्षेत्र में एक कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने से पहले हमें किस तरह से प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। उपनिषद को फिर से हम उद्धृत करते हैं। आत्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ जानो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझो। कहते हैं कि इंद्रियां घोड़े हैं और मार्ग इंद्रिय विषयक हैं। जब आत्मा शरीर, इंद्रियों और मन के साथ एक हो जाता है तो बुद्धिमान लोग उसे आत्मा का भोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो शिष्य को प्रोत्साहित करते हैं। ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर उठो, जागो, आत्मा का साक्षात्कार करो। केवल उस परम सत्य का साक्षात्कार करके ही मनुष्य मृत्यु के मुख से मुक्त हो सकता है, जो ध्वनिहीन, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, अपरिवर्तनशील, अनादि, शाश्वत है और जो ब्रह्मांडीय मन से भी परे है। हम इन अंशों को पढ़ते हुए समझते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे सामने सर्वोच्च आदर्श क्यों रखते हैं और हमें उचित योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में भी बताते हैं, जिसके बिना कोई आध्यात्मिक अनुभूति संभव ही नहीं है।
जिसके बिना आध्यात्मिक मार्ग भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आवश्यक प्रशिक्षण के साथ व्यक्ति अंततः लक्ष्य तक पहुंच सकता है। And now, next topic is the need for training to walk on the razor's edge, अर्थात धार पर चलने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता। Many people are afraid of following the spiritual path, but if we have the real training, we need not to be afraid at all. Is it merely a child's play to drive a motor car? Is it possible for an untrained person to fly an aeroplane or to skate or ski? No, these are all dangerous sports and pastimes. But if one is properly trained, one may do all these with control and grace. Spiritual life is extremely necessary if we want to live in the world rightly and want to make spiritual progress. अर्थात बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से डरते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वास्तविक प्रशिक्षण है तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। क्या मोटर कार चलाना सिर्फ बच्चों का खेल है? क्या अप्रशिक्षित व्यक्ति के लिए हवाई जहाज उड़ाना या स्केटिंग या स्की करना संभव है? नहीं, ये सभी खतरनाक खेल और मनोरंजन हैं। लेकिन अगर कोई उचित रूप से प्रशिक्षित है तो ये सब नियंत्रण और शालीनता के साथ कर सकता है। और यदि हम संसार में सही ढंग से रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक अभ्यास अत्यंत ही आवश्यक है। In November 1882, Sri Ramakrishna, the great prophet of modern India, went to see a circus in Calcutta in the company of Rakal and some others disciples. At the circus there were exhibition of various feats. One of these impressed the master greatly. A horse raced around a circle track over which large iron rings were used at intervals. The circus rider, an Englishwoman, stood on one foot on the horse's back, and as the horse passed under the rings, she jumped through them, always alighting on one foot on the horse's back. The horse raced around the entire circle several times, but the woman never missed the horse or lost her balance. This feat, to be sure, must have taken years of practice to accomplish. The master enjoyed it. It reminded him of what one should do in one's spiritual life. नवंबर 1882 में आधुनिक भारत के महान पैगंबर श्री रामकृष्ण राखाल और अन्य शिष्यों के साथ कलकत्ता में एक सर्कस देखने के लिए गए। सर्कस में विभिन्न करतबों का प्रदर्शन हो रहा था। इनमें से एक करतब ने गुरु को बहुत प्रभावित किया, जिसमें एक घोड़ा एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहा था, जिसके बीच बीच में लोहे के बड़े बड़े छल्ले लटके हुए थे। सर्कस के बीच बीच में सर्कस की सवार एक अंग्रेजी महिला थी जो घोड़े की पीठ पर एक पैर पर खड़ी थी, और जैसे ही घोड़ा छल्लों के नीचे से गुजरता वह छल्लों के बीच से कूद जाती और हमेशा एक पैर घोड़े की पीठ पर रखकर उतरती। घोड़े ने पूरे घेरे में कई बार दौड़ लगाई, लेकिन महिला ने कभी घोड़े से चूक कर या अपना संतुलन खोकर नहीं देखा। यह कर्तव्य निश्चित रूप से पूरा करने में वर्षों का अभ्यास लगा होगा। गुरु को यह बात बहुत पसंद आई। इसने उन्हें याद दिलाया कि व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या करना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण ने अपने भक्तों से कहा कि क्या तुमने देखा कि अंग्रेज महिला अपने घोड़े पर एक पैर पर खड़ी थी, जबकि घोड़ा बिजली की तरह दौड़ रहा था। ये कितना कठिन काम होगा। उसने बहुत समय तक अभ्यास किया होगा। जरा सी असावधानी हुई तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। गृहस्थ जीवन जीने में भी यही कठिनाई आती है। कुछ लोग भगवान की कृपा से और अपनी साधना के फलस्वरूप इसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार में प्रवेश करके वे उसमें और अधिक लिप्त हो जाते हैं।
वे सांसारिकता में डूब जाते हैं और मृत्यु की पीड़ा को झेलते हैं। केवल जनक जैसे कुछ लोग ही तपस्या के बल पर गृहस्थ जीवन जीने में सफल हुए और इसीलिए साधना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संसार में कोई सही ढंग से नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक साधना से प्राप्त संतुलन और शांति के बिना व्यक्ति अनेक प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित हो सकता है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में की तरह आध्यात्मिक जीवन में भी खतरों से बचना होता है और बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी होती है। You know what is the greatest obstacle in spiritual life? It is the tendency to live a fashionable religion. That is possible so long as one does not have spiritual hunger. But when this hunger is born in the soul, one yearns for divine realization. One cannot then sit quiet. One is urged to follow the spiritual path which takes one nearer and nearer to the ultimate goal. Our teachers tell us that the human birth is a great privilege. Having attained this human birth, if a person just leads the life of an animal, it is a pity. One may read no end of books and one may listen to no end of lectures, but if one's mind is not inclined to the spiritual ideal, everything has been in vain. So, in India, the spiritual teachers tell us you must win the grace of your own mind. It is not enough if we have the grace of God and the grace of a teacher. We might have been fortunate in receiving many spiritual instructions, but unless we have the grace of our own mind, everything comes to nothing. Our mind must be open to truth. Now, even if the mind is open to truth, even if we possess real love for the spiritual ideal, training is necessary. Good training is necessary even in the worldly pursuit. We cannot do work of any kind without the necessarily education and practice. And the same is true of spiritual life. अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी पुस्तक पढ़ ले, कितने भी व्याख्यान सुन ले, लेकिन अगर उसका मन आध्यात्मिक आदर्श की ओर नहीं झुका है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए भारत में आध्यात्मिक गुरु हमें कहते हैं कि तुम्हें अपने मन की कृपा जीतनी चाहिए। अगर आप हमारे पास भगवान की कृपा, गुरु की कृपा है तो ये पर्याप्त नहीं है। हम कई आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त करने में भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास अपने मन की कृपा नहीं है, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। हमारा मन सत्य के प्रति खुला होना चाहिए। वह भले ही मन सत्य के प्रति खुला हो, भले ही हमारे पास आध्यात्मिक आदर्श के लिए वास्तविक प्रेम हो, प्रशिक्षण आवश्यक है। सांसारिक कार्यों में भी अच्छा प्रशिक्षण आवश्यक है। हम आवश्यक शिक्षा और अभ्यास के बिना किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते और यही बात आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी सच है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक किस्सा है कि अ यंग मैन हु हैड नो स्पेशल ट्रेनिंग वाज ओवर एंशियस टू गेट ए position as an executive, and he went to a bank, saw one of the vice president and told him he would like very much to get a good job, the job of an executive. The official who was interviewing the young man said, I am sorry, we have none. We already have 12 vice presidents. The young man, undaunted, replied, I have no superstition about the number. I don't mind becoming the 13th. Well, vice presidents are not made that way. They are to be trained. Similarly, if you want to attain the highest goal, if you want to walk on the edge of the razor, you need special training. You will be cut into pieces if you make an attempt without it. But if you are properly trained, there is absolutely no fear, and you may even find pleasure in walking on the edge of the razor. We all know what happens to a weak electric wire when the high voltage electric current is passed through it. The wire will burn up.
Similarly, when without proper preparation, we want to be in tune with the cosmic spirit, so great will be the pressure. Be that our body, our nerves, our mind will not be able to bear it. This is a fact. So, in order to follow the spiritual path, we need a strong body, a strong mind, and intellect, and strong senses. Otherwise, all our struggle will end in failure. तो ये किस्सा है एक युवक का जिसके पास कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं था और वह कार्यकर्ता के रूप में पद पाने के लिए बहुत उत्सुक था। वह एक बैंक में गया और एक उपाध्यक्ष से मिला और उससे कहा कि वह कार्यकारी की अच्छी नौकरी पाना चाहता है। जो अधिकारी उस युवक का साक्षात्कार कर रहा था उसने कहा, मुझे खेद है, हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास पहले से ही 12 उपाध्यक्ष हैं। युवक ने निडर होकर उत्तर दिया, मुझे संख्या के बारे में कोई अंधविश्वास नहीं है, मुझे 13वां बनने में कोई आपत्ति नहीं। वैसे उपाध्यक्ष ऐसे नहीं बनते, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उस तरह की धार पर चलना चाहते हैं तो आपको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर आप इसके बिना प्रयास करेंगे तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप उस तरह की धार पर चलने में आनंद भी ले सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक कमजोर बिजली के तार में से हाई वोल्टेज बिजली प्रवाहित की जाती है तो उसका क्या होता है? तार जल जाएगा। इसी तरह जब हम बिना किसी उचित तैयारी के ब्रह्मांडी आत्मा के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं तो इतना दबाव होगा कि हमारा शरीर, हमारी नसें, हमारा मन इसे सहन नहीं कर पाएगा। और यह एक सच्चाई है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें एक मजबूत शरीर, एक मजबूत मन और बुद्धि और मजबूत इंद्रियों की आवश्यकता है। अन्यथा हमारा सारा संघर्ष विफल हो जाएगा। And the now next topic is the Sphinx within. The biological laws of the struggle for existence and the survival of the fittest hold good in the spiritual world also. In the animal world, animal fight with animals. In the lower human world, men fight with the men, and only the strongest survive. In the domain of spiritual life, the fight is not between the man and man, but between the lower and higher natures of man. And we all know what it is, how our higher nature and our lower nature go on fighting and fighting and bring us no end of misery. In Greek mythology, the Sphinx is a monster having a lion's body and the head of a woman. The Sphinx of Thebes, they say, used to ask the Thebans to guess a riddle. She, however, stipulated a hard condition. Whoever failed to give the correct answer had to die. But if anyone gave the right answer, he would sit on the throne of the Thebes. The question she asked was, what walks on 4 feet in the morning, on 2 at noon, and on the 3 in the evening? She strangled many who failed to give the correct answer. Oedipus, it is said, solved the riddle by saying, man crawls on all four as a baby, walks upright in the prime of life, and uses a staff in old days. Now we are told upon hearing the correct answer, the Sphinx jumped into the sea and killed herself, and Oedipus became the king of Thebes. In Egyptian mythology, the Sphinx has a lion's body and a man's head. The Roman Sphinx of a later period sometimes has a man's and sometimes a woman's head. Well, the Sphinx represents us all, man and woman. Indeed, we men and women all are all strange creatures, and we combine both animal and human elements in our character. And these elements hide the spirit. When the Sphinx asks,
What are you? Are we able to answer? If we can answer, I am spirit, the sphinx in us would die. Then we would experience the awakening of self knowledge, the coming of the knowledge of the true man, the self, the spirit in us, and this strange personality, the combination of opposites would disappear. भीतर का स्फिंक्स अस्तित्व के लिए संघर्ष सबसे योग्य का जो जीवित रहने का जो जैविक नियम है आध्यात्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है। जानवरों की दुनिया में जानवर जानवरों से लड़ता है, निम्न मानव दुनिया में मनुष्य मनुष्यों से लड़ता है और केवल सबसे शक्तिशाली ही जीवित रहता है। आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में लड़ाई मनुष्य और मनुष्य के बीच में नहीं बल्कि मनुष्य के निम्न और उच्च प्रकृति के बीच में होती है। और हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारी उच्च प्रकृति और निम्न प्रकृति आपस में लड़ती रहती है और हमें दुखों का अंतहीन सिलसिला देती है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में स्फिंक्स का एक राक्षस है जिसका शरीर शेर जैसा और सिर महिला का है। कहा जाता है कि थेब्स की स्फिंक्स थेम्बस से एक पहेली का अनुमान लगाने के लिए कहती है। हालांकि उसने एक कठोर शर्त भी रखी, जो कोई भी सही उत्तर देने में विफल रहता था तो उसे मरना पड़ता था, लेकिन अगर कोई सही उत्तर देता तो वह थेब्स के सिंहासन पर बैठता। उसने जो सवाल पूछा वह था, सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर कौन चलता है? उसने कई लोगों का गला घोंट दिया जो सही उत्तर देने में विफल रहे। ऐसा कहा जाता है कि ओडिपस ने यह कहकर पहेली को हल किया कि मनुष्य एक बच्चे के रूप में चारों पैरों पर रेंगता है। जीवन के प्रमुख समय में वह सीधा चलता है और बुढ़ापे में एक छड़ी का उपयोग करता है। अब हमें बताया जाता है कि सही उत्तर सुनने पर स्फिंक्स ने समुद्र में छलांग लगा दी और खुद को मार डाला और ओडिपस थेब्स का राजा बन गया। मिस्र की पौराणिक कथाओं में स्फिंक्स का शरीर शेर का और सिर आदमी का होता है। बाद के समय में रोमन स्फिंक्स का सिर कभी आदमी का तो कभी औरत का होता है। खैर, स्फिंक्स हम सभी पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में हम पुरुष और महिलाएं सभी अजीब प्राणी हैं और हम मनुष्य और पशु दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे चरित्र में मानवीय ये तत्व हैं और ये तत्व आत्मा को छिपाते हैं। जब स्फिंक्स पूछता है कि तुम क्या हो, तो क्या हम जवाब दे पाते हैं? अगर हम जवाब दे सकें कि मैं आत्मा हूं, तो हमारे अंदर का स्फिंक्स मर जाएगा। तब हम आत्मज्ञान की जागृति का अनुभव करेंगे और हमारे अंदर सच्चे मनुष्य आत्मा आत्मा के ज्ञान का आगमन होगा और यह अजीब व्यक्तित्व विपरीतताओं का संयोजन गायब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे ट्राई टू बी कॉस्मोसेंट्रिक, ब्रह्मांड केंद्रित होने का प्रयास करें।